Okay, good evening, everyone. Let's start. Am I audible? Okay, so I think we have covered till HM. We have studied HM. Last question was inserting HM between 1 and 6. Correct? That was the last question. So what was the last question that we did? Okay, fine. So I gave you an HP and find the 6th term of series. So what the second last question maybe? It was an HP. Okay. So today, before starting the GP, we'll take this entire lecture indeed devoted to what we call a telescopic series. So give it a heading, telescopic series. See guys, T of n is given to us. This is T of n. Let's say T of n is given as tan of 1 plus n of x minus tan of n of x. This is what is given. And we have been asked to find S of n. S of n find करिए. ठीक है, ये हमसे बोला गया. ठीक है. Is this, if you put the various values of n, you get the various term. If you put 1, you'll get the first term, 2, second term, 3, third term, and so on. So this is an AP. यदि AP होता तो I could have applied direct formula n by 2 2a plus n minus 1 into d. No. Is it a HP? Even if it was a HP, correct ना? Even if it was a HP, तब भी मेरे पास तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं HP के सम का. ठीक है, तो तब भी नहीं कर सकता था. And if you even look at very closely, it is not a GP also. So how to find the sum of such series, that what we're going to learn. Right? So look at, please observe this series. What happens when I start putting the values? Let's say I put the value of T1. But I'll get tan 1 plus 1, that is 2x minus 10x. Fine. Second term, I'll substitute 2 in place of n. I'll get what? Tan 3x minus tan 2x. I'll substitute 3. I'll get what? Tan 4x minus tan 3x. And so on. Last term would be the nth term. When I substitute n, I'll get what? 1 plus nx minus tan of nx. Now add all these. When you add all these LHS, what will the LHS will become? The summation of all these as per definition is what? S of n. What happened to the RHS? Various terms started to cancel out each other. T2, this is plus, this is minus, plus, minus, and so on. Correct now? These will cancel out, and nx will also cancel out. Which two term will remain? This term, tan 1 plus n x into 10x. अभी यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो. Anyone having any doubt till here? Tell. Yes. Sir, I just joined, so I just had one doubt. So the Tn and S of n both are equal. Why both are equal? Tn of n is given. We have been asked to find S of n.
So because I just joined, that's why I'm confused. That's why I just No. asked. Question है that T of n is given. We are finding S of n. That's the question. That's it. Yes, sir. Thank you. Yes. Hello. हाँ बोलो. Yes, sir. Sir, S of n will be tan 1 plus n of x minus tan of x or tan of nx. X देखो ना बेटा सारे कट रहे हैं यहाँ पे. ये वाले टर्म सारे कट रहे हैं. RHS वाले टर्म देखो सारे कट रहे हैं. Okay. Okay, sir. देख रहे हो ना, you can see इस साइड के सारे Yes, sir. टर्म्स कट रहे हैं. इस टाइप के सारे टर्म कट रहे हैं. Hmm. तो NX भी कट Okay, रहा sir. है. Clear. Thank you. चलो. तो गाइस ऐसा क्यों हो रहा है ना? अब इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अच्छा आप लोगों को दिख रहा है क्या, है ना, कि यदि इफ इस प्लेस माइनस के प्लेस पे इंस्टेड ऑफ दिस माइनस यदि प्लस होता तो क्या ये सारे टर्म कटते, है ना? इफ इंस्टेड इन Tn इंस्टेड इस Tn में माइनस की जगह यदि प्लस होता तो क्या ये सारे टर्म कटते? नहीं कटते ना, सिंपल ऐड हो जाते, कटते ही नहीं. वेरी गुड, है ना? तो ऐसा होने के लिए, अच्छा आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये बार बार ऐसा होगा, जब भी ऐसा माइनस होगा तो आप कोई भी, है ना, लोगे तो ये टर्म्स कटेंगी. सेकंड कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना प्लीज. सेकंड कंडीशन ध्यान से देखो. सपोज करो यहाँ tan की जगह cos या cot या व्हाटएवर कोई अदर फंक्शन होता. tan 1 प्लस ये वाला तो सेम होता, बट यहाँ RHS में tan की जगह कोई cot होता, तब भी टर्म कैंसिल होती है क्या? लिख के देखो जरा, कैंसिल होंगी क्या? नहीं ना, नहीं, नो. ठीक है. सो इट मींस देयर आर टू कंडीशंस इस टाइप की सीरीज को ना, ये जो बनी है जिसमें टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, दीज आर कॉल्ड टेलीस्कोपिक सीरीज, है ना? तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझना अभी, कि टेलीस्कोपिक बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, दैट यू मस्ट हैव अ माइनस साइन इन बिटवीन. इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो. Is the first condition clear that for making a telescopic minus sign must be there in between? Otherwise, terms will not cancel out. You won't get the telescopic. Second condition is that on both side of the minus, the type of function should be same. है ना? If here is tan function, here should also be tan function. If here is log function, here should also be the log function. Are you getting my point? What is the second condition? That the function to the both side of the minus must be same. And the third important condition is that both the rank of both the terms should differ by 1. The rank of both the terms should differ by 1. इसका मतलब क्या, देखो यहाँ n है तो यहाँ क्या है, n plus 1. तभी तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ 2x आएगा, यहाँ 2x आएगा तो यहाँ 3x आएगा, तभी तो वो कैंसिल आउट होंगी. तो तीनों कंडीशन क्लियर हैं. आर ऑल थ्री कंडीशंस फॉर बिकमिंग whether checking whether a particular series is ठीक है. चलो वेरी गुड. अभी ध्यान से देखना. फॉर एग्जांपल, तो अभी सपोज करो आपको कोई भी फंक्शन दे दिया गया है ना? ध्यान से देखना. सपोज करो आई हैव गिवन यू अ फंक्शन t of n as f of n. लॉग ऑफ फंक्शन क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पूरी लॉग की वर्कशीट सॉल्व करी थी क्लास 9 में. कौन पूछ रहा है लॉग फंक्शन? t of n is given as f of n plus 1 minus f of n. ये कंडीशन समझ में आई? देखो ये जो
टी ऑफ एन लिखी ना मैंने, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस साइन है पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन एफ जो है वो सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एफ, और थर्ड कंडीशन है दोनों की रैंक देखो जरा 1 से डिफर कर रही है। ठीक है, तो यदि आपको कोई ऐसा कंडीशन लिखा है ना तो आप एस ऑफ एन बेटा एक सिंपल लाइन में लिख सकते हो। आपको ये बार बार ये जो मैंने ये लिखा है ना ये पूरा करने का नीड नहीं है। ऐसा बार बार कौन लिखेगा? क्या करो, जो लार्जर टर्म है जिसकी रैंक बड़ी है, इन दोनों में रैंक किसकी बड़ी है बताओ मेरे को? इसकी, n+1 वाले की, उसको एज इट इज रखना है। एज इट इज रखो, क्या आएगा? f ऑफ n+1, उसको बिल्कुल मत छेड़ो। और जो छोटा वाला टर्म है जिसकी रैंक कम है ना, उसमें n की जगह 1 पुट कर दो, तो क्या आएगा? f ऑफ 1। So if t of n is f of n+1 minus fn, then s of n is equals to what? f of n+1, keeping the large term, the term whose rank is more than the other term, as it is, minus substituting 1 in the place of n in the smaller term. So the first step, अभी आपको क्या करना है? पहचानना है कि कौन सा टर्म लार्जर टर्म है, which term is the larger and which term is the smaller। ठीक है, देखो जरा ये वाला देखो, सपोज करो मैंने t of n दिया हुआ है, this is t of n, 1/n+1 minus 1/n। How will you recognize कि इनमें कौन सा लार्जर टर्म है कौन सा स्मॉलर टर्म है? You choose any term। स्टेप ध्यान रख लेना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो तो बताना। स्टेप 1, चूज एनी, इसमें से कोई भी एक चूज कर लो, डजंट मैटर। सपोज करो मैंने ये चूज किया, आई हैव चूजन दिस टर्म। स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट n की जगह क्या रिप्लेस करना है आपको? n+1। ऑलवेज रिप्लेस n विद n+1। तो यहां में मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या जाएगा n की जगह? n+1। If you get another term, in this case we got this term, है ना, these two terms are same, then the term that we have chosen was what? Smaller। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। And the term that we have chosen first is the smaller। करेक्ट? हाँ, फिर से देखो, फिर से रिपीट करता हूँ। t of n given है ना, what we are learning, we are trying to learn the larger term and smaller term, कि इन दोनों में से कौन सा टर्म लार्जर टर्म है स्मॉलर टर्म है, सो दैट जब मैं s of n लिखूं तो मैं लार्जर टर्म को बिल्कुल ना छेड़ूं, उसको एज इट इज रखूं और स्मॉलर टर्म में n की जगह 1 पुट कर दूं। So the first step is recognizing which is the larger term and which is the smaller term. How to do that? In 2 steps। In step 1, इनमें से कोई भी टर्म चूज कर लो, डजंट मैटर। ठीक है, मैंने सपोज करो ये वाली टर्म चूज करी, 1/n। अब मैं n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? n+1। ऑलवेज n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? n+1। आफ्टर डूइंग दैट, इफ यू गेट दी अनदर टर्म, जो इस केस में मेरे को मिल गई है n+1, then the term that we have chosen was smaller। और यदि ऐसा नहीं होता तो ये वाली टर्म क्या हो जाती? लार्जर टर्म। ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। है ना? अच्छा, अभी मेरे को पहचान के बताओ, रिकॉग्नाइज इनमें से कौन सा लार्जर टर्म है और कौन सा स्मॉलर टर्म है? t of n is given as log of n minus log of 1 plus n। Tell me which term is smaller, which term is larger? Log n is what? You need to answer fully. Log n is smaller. Yes, correct।
है ना? नो, बहुत से बच्चे क्या देख रहे हैं, सोचते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है कि सर जो टर्म माइनस के साथ आती है ना वो स्मॉलर होती है। नो, मैंने ये डेफिनेशन बोली है क्या? इसमें ये टर्म माइनस के साथ आ रही है ना, तो लोग बोल रहे हैं कि सर ये स्मॉलर है। ना 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 ना, मैंने ये सिखाया ही नहीं। मैंने क्या बोला? कोई भी एक टर्म चूज करो। सपोज करो आपने यही वाली टर्म चूज करी, तो क्या टर्म है? log n plus 1। नाउ रिप्लेस n with n plus 1 करो। n plus 1 plus 1 क्या मिल गया? log of n plus 2। क्या दूसरी टर्म log of n plus 2 है? नहीं है। सो ये वाली टर्म जो है आपने चूज करी थी वो स्मॉलर नहीं है। स्मॉलर में n की जगह n plus 1 पुट करने के बाद दूसरी टर्म मिल जाती है। If this term would have been smaller, after replacing n with n plus 1, I must get the another term. Correct? अभी पहला वाला टर्म चूज करो। Let's log n चूज करो। log n चूज किया। अभी क्या करूंगा? n की जगह क्या रिप्लेस करूंगा? n plus 1। तो क्या हो जाएगा? n plus 1। क्या ये सेकेंड टर्म है? हाँ है। So this is the smaller term. समझ में आया? ठीक है, तो अभी देखो इनका आंसर ना बेटा एक एक लाइन में लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, मैं दोनों का ऐसा लिख के बताता हूं आपको। ठीक है, सपोज करो पहला केस क्या है? टी ऑफ एन। टी ऑफ एन क्या है? 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 बाय n। तो एस ऑफ एन क्या हो जाएगा? जो लार्जर टर्म है उसको एज इट इज रखो, दैट इज 1 अपॉन n प्लस 1। स्मॉलर टर्म में n की जगह 1 पुट कर दो। ये इस वाले टी ऑफ n का एस ऑफ n है। दूसरा वाला मैंने एक और क्या लिया था? log ऑफ n माइनस log ऑफ 1 प्लस n। तो एस ऑफ n क्या रखोगे? स्मॉल लार्जर टर्म को एज इट इज रखो, दैट इज 1 प्लस n। स्मॉलर टर्म में n की जगह 1 पुट कर दो, दैट इज log ऑफ 1। अब जिनको log ऑफ 1 की वैल्यू आती है उनको उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? इस यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। यस Anvi। Sir, in the first example, if we actually substitute the value of n, say 1, so then 1 upon n plus 1 is the smaller term. But here we're taking it as the greater term. So I was a little confused about that. नहीं, what part you didn't understood? How to No, recognize? sir, I understood how to recognize which is a smaller Okay. term and which is the larger term. I just had a confusion that हाँ. if we actually substitute the value of n, suppose say 1, हाँ, do it ना, do it. Which term will cancel out? Do it. Let's see. Do it. कौन सी किसके लिए करना है? इसके लिए करना है? हाँ. लॉग वाले के लिए करना है कि इसके लिए करना है? अच्छा, okay, okay, I understood, sir. I understood what is happening. Okay, yeah, I got it. यस अहमद। सर मुझे भी यही डाउट था सर। सर ऊपर वाला करता है तो सर n को 1 रखो। कौन सा वाला बोलो? t of n is equal to 1 upon n plus 1 minus 1 by n। हाँ, चलो आपने करके देखा है? नहीं सर, अब तक किया नहीं है। तो बेटा करो ना, टाइम वेस्ट मत करो बेटा, 1.5 घंटे का लेक्चर है। सर तो 1 by 2 minus 1 आएगा। हाँ करो, 1/2 माइनस 1, फिर T2 कितना आएगा? minus 0.5। बेटा इनको लिखते जाओ, ऐसा क्या आएगा? 1/3 माइनस 1/2। T4 T3 कितना आएगा? 1/4 माइनस 1/3। ठीक है। Tn हाँ। कितना आएगा? 1/1 प्लस n माइनस 1/n। ऐड करो जरा, क्या क्या कट रहा है देखो जरा। ये कट रहा है, ये कट रहा है, क्या बच रहा है? सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे। तो वही तो लिखा है मैंने, एस ऑफ एन। ओ हाँ सर, हाँ सर, सॉरी सर। ओके, थैंक यू सर। अंडरस्टूड गाइस? और किसी को कोई डाउट?
जो मैंने प्रोसेस समझाया है उसमें कोई डाउट है तो बोलो। पहचान लोगे ना कौन सा लार्जर टर्म है कौन सा स्मॉलर टर्म है। तो अभी मैं आई एम गिविंग यू 5 क्वेश्चंस, है ना। सबके आंसर एक एक लाइन में लिखना है। ऐसा कोई भी बच्चा बड़ा करके नहीं लिखेगा, जैसे मैंने अभी अहमद को समझाया है और या फिर इसको क्या नाम है आनवी। मैं आई डोंट वांट टू राइट दी होल टर्म्स अगेन। हम वही पार्ट स्किप करना चाहते हैं, है ना। वी डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम इन द एग्जाम, ना। तो एक लाइन में आपको एस ऑफ एन लिखना है। मैं टी ऑफ एन दे रहा हूँ फॉर 5 क्वेश्चंस, ना। एंड स्टार्ट पोस्टिंग द आंसर्स। दिस इज टी ऑफ एन फॉर फर्स्ट। सेकंड, फैक्टोरियल है, ठीक है। n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, टी ऑफ एन 1 फैक्टोरियल n। क्वेश्चन नोट कर लेना बेटा, मैं बाद में नहीं लिखूंगा। कोई बच्चा मेरे को नहीं बोलेगा कि सर फिर से क्वेश्चन लिख दो, मैं नहीं लिखूंगा। मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ अभी। प्लीज नोट द क्वेश्चन। cot of 2n-1 x माइनस cot of, पांचों आंसर एक साथ पोस्ट कर देना बेटा, मेरे को चेक करने में आसानी होती है। अदरवाइज अलग अलग करोगे so it will take a lot of time for me to check. तो फर्स्ट टेक योर ओन स्वीट टाइम, नो हरी, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिल रहे आपको जल्दी करने के। टेक योर ओन स्वीट टाइम and post all the 5 solutions together. You need to find s of n in each case. सो रहे हो क्या? क्या पूछते हो? You need to find s of n in each case. टू n, है ना? It's 2n-1. This is not n. This is 2n. Cot of 2n-1 x minus cot of 2n+1. पांचों के आंसर एक एक लाइन में पोस्ट करना, एक से ज्यादा लाइन नहीं लगनी चाहिए। नो, यू कैन सिंप्लीफाई करके नहीं देना है आंसर। सिंपल एक लाइन में आंसर दो, पूरा सिंप्लीफाई करके मत दो। यू डोंट नीड टू सिंप्लीफाई। यस करेक्ट भावेश, फर्स्ट का आंसर करेक्ट है फ्रॉम भाविश, करेक्ट है। पांचों को एक साथ दो बेटा, है ना। टेक योर ओन स्वीट टाइम, नो हरी, सबको आना चाहिए। विदीप करेक्ट है। विदीप आपको होमवर्क नहीं मिल रहा है क्या? आई गॉट अ कंप्लेंट फ्रॉम योर पेरेंट, you're not practicing maths, so I'll posting the assignments from right onwards now. Yes Ahmed, correct है। पीयूष करेक्ट है।
प्लस में आएगा, साइन चेक करो तन्मय झा फॉर क्वेश्चन नंबर 4th, काइंडली चेक दिस साइन। और बाकी सब करेक्ट है, ओनली क्वेश्चन 4 का साइन चेक कर लो, रिवर्स आएगा आपने जो भी साइन दिए हैं। हाँ आदित्य करेक्ट है, फ्रॉम घोड़बंदर। नेहा सिंप्लीफाई कर दिएगा, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ ऑल 5 करेक्ट स्नेहा चेंबूर। You don't need to simplify, you can give me the non-simplified answer, बस पांचों एक साथ दे दो so that I can check। हर्षित all 5 are correct। अनुराग from बोरीवली, थर्ड वाला चेक करो रॉन्ग है, सेकंड वाला भी रॉन्ग है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। अनुराग की बात कर रहा हूं मैं, बोरीवली। फोर्थ वाला भी बेटा आपका रिवर्स साइन है, रॉन्ग है। फिफ्थ वाला करेक्ट है, ओनली फर्स्ट एंड फिफ्थ करेक्ट, रेस्ट 3 आर रॉन्ग। शौनक फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड वाला आपका रॉन्ग है, थर्ड वाला रॉन्ग है, फोर्थ वाला रॉन्ग है, फिफ्थ वाला करेक्ट है। ओनली फर्स्ट एंड फिफ्थ आर करेक्ट, रेस्ट 3 आर रॉन्ग। कुणाल फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है, फोर्थ रॉन्ग है, फिफ्थ करेक्ट है। आदित्य फ्रॉम घोड़बंदर, ऑल 5 आर करेक्ट। थर्ड नहीं दिया आपने, थर्ड का आंसर भी दे दो, रेस्ट 4 आर करेक्ट आदित्य। खुशी फ्रॉम अंधेरी, फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वन इज करेक्ट, थर्ड वन is wrong, fourth one is wrong, fifth one correct। Adhya, first one, second one is correct, third one is correct, fourth one x आएगा, cot 1 नहीं आएगा, cot 1x, fifth is correct। हाँ अभी सही है तन्मय झा। पांचों जो एक साथ पोस्ट कर रहा है मैं उन्हीं का आंसर चेक कर रहा हूँ, बाकी मैं किसी का करूंगा ही नहीं। सेकंड अंजलि, फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड आपका रॉन्ग है अंजलि, फिफ्थ वाला आपका करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है कृष्णा, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड आपका करेक्ट है, थर्ड वाला रॉन्ग है, फोर्थ वाला रॉन्ग है, फिफ्थ वाला करेक्ट है। अर्पिता फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, फोर्थ करेक्ट, फिफ्थ करेक्ट, ऑल 5 करेक्ट। अर्पिता फ्रॉम बोरीवली। जयेंद्र फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, फोर्थ करेक्ट, फिफ्थ करेक्ट, ऑल 5 करेक्ट। Devanshu Rath from Borivali, first correct, second correct, third, fourth, fifth, all 5 are correct। Athar, first correct, second correct, third, fourth, fifth, all 5 are correct। जो 5 पोस्ट कर रहे हैं एक साथ मैं उन्हीं का चेक कर रहा हूँ, इंडिविजुअली चेक कर ही नहीं रहा हूँ, पहले बोल दिया है। विरोक शर्मा फ्रॉम अंधेरी, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, third you don't need to simplify, I told you, you can give me the simple plain answer, third is correct, fourth is correct, fifth one is also correct, all 5 correct। Viroke Sharma from Andheri। Shakib first correct, second correct, third correct, fourth correct, fifth correct, all 5 correct। Snehal from Dadar first correct, second correct, chalo very good है ना। तो I can see that अभी now many of you got it correct ना, so let me explain अभी ना, जिनको आ गया है very good, मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ है ना। I'm going to erase this and explain that।
तो मैं सबसे पहला वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें तो बहुत इजी है पहचानना। इसमें आप n की जगह n+1 डालोगे तो देखो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। सो दिस टर्म इज स्मॉलर, दिस टर्म इज लार्जर। सो लार्जर टर्म को क्या करना है, एज इट इज रखना है। सो कीप द लार्जर टर्म एज इट इज, दैट इज n+1 होल स्क्वायर। फाइन। And you substitute 1 in place of what? Smaller term. So what will become? The s of n will become n+1 whole square minus 1. That's it. इतना आंसर दे दो, I am okay with that. That is s of n. You don't need to simplify for it. Right? Second वाला में again very clear. इसमें आप n की जगह n+1 डालोगे आपको ये मिल जाएगा। तो s of n क्या हो जाएगा? It would be keep the larger term as it is, that is n+1 factorial. Substitute 1, so 1 factorial. That's it. That's the answer for second. Right? Now question number third. थर्ड में बहुत से बच्चों ने ये मिस्टेक तो नहीं करी कि जो माइनस के साइन वाला है वो स्मॉलर टर्म है। नो 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 नो, क्या करना है आपको? n की जगह n+1 कन्वर्ट करना है। इफ यू सब्स्टिट्यूट इस n में n+1, you get this term. So what would be s of n? S of n would be 1 upon factorial 1 minus 1 upon n+1. I'm keeping the larger term as it is, and this is the smaller term. Yes, Harshit. क्या डाउट है हर्षित? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप कोई भी टर्म चूज कर लो, है ना? वो कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होनी चाहिए। सपोज करो मैंने 2n- वाली वन टर्म चूज करी, cot 2n-1 x। इस x को n को किससे रिप्लेस करना है? n+1 करो। 2 ब्रैकेट n+1 -1 और बाहर तो x चल ही रहा है, ये क्या हो जाएगा? 2n+2 -1 ब्रैकेट x। ये क्या आ जाएगा? 2n+1 x। यही तो है 2n+1 x। तो मतलब जो टर्म हमने चूज करी थी वो कौन सी हो गई? स्मॉलर, क्योंकि उसमें n+1 डालने पे हमको दूसरी टर्म मिल गई। तो अब भी वेरी इजी, उसमें n की जगह क्या डालना है आपको? n+1। यू सब्स्टिट्यूट 1 in the smaller term. So let us substitute s of n। यहाँ पे 1 डालोगे तो 2 - 1 बनेगा, that is x हो जाएगा वो। So cot of x 1x ना, माइनस लार्जर टर्म को छेड़ना नहीं, उसको एज इट इज रखो, cot of 2n+1x। That's it। लास्ट वाला दिख ही रहा है, ये n है, ये n+1 है, तो क्या आएगा s of n? It is 3 to power n+1 minus 3 to power 1। That's it। Understood? चेक कर लो बेटा आप सब आंसर। भाई मेरे को छोटे बच्चों की तरह चेक मत कराओ, मैंने पांचों आंसर एक्सप्लेन कर दिए। यू कैन चेक योरसेल्फ। समझ में नहीं आया तो बोलो, चेक मेरे से मत कराओ, चेक डू इट बाय योरसेल्फ। यस, व्हाट इज द डाउट खुशी? Hello, sir. हाँ, So my doubt was कि when are you supposed to put the larger number before the minus? no, it's not necessary. Larger term can be with plus or it can be with minus, doesn't matter. What is the method? You take any term, substitute n with n+1. If you are able to get the other term, then the term that you have chosen was the smaller one. Okay. नहीं sir, but then the third one में हाँ, so there we took 1 factorial minus 1 by n+1 factorial. Okay. But 1 by n+1 factorial was the larger term. Yes, this is the larger term.
So how do we know whether we should put it with the minus or with the plus sign? That is That's my why I'm question. telling you now, you don't focus on the plus or the minus sign. You focus on n replacing with n plus 1. Forget about plus and minus. Okay. Only you do, you choose any term. Let's say you've chosen this term. Hmm. Replace n with n plus 1, you'll get n plus 2. Is it Right. this term? No. So this term is not a smaller one. Now choose this term. Replace n with n plus 1, we'll get n plus 1 factorial. Is this the other term? Yes, it means the term you have chosen was the smaller one. Now where does the plus and minus come into this picture? No, I was talking about the sum of n terms. So that's why I'm focusing. Now do not focus on the plus and minus. Only focus n with n plus 1. That's it. Okay. Thank you, sir. Okay. So now guys, आप लोगों को पता है ना sum of the first and natural number क्या होता है? What is the sum of first and natural numbers? हाँ? हाँ. n into n plus 1 by 2. प्रोडक्ट नहीं पूछा है मैंने, है ना? पार्शियल सम n into n plus 1 by 2. ठीक है, अभी ध्यान से देखना, इसको हम प्रूव करेंगे यूजिंग व्हाट दिस टेलीस्कोपिक. देखो, यूजिंग दिस आइडेंटिटी n is equals to n into n plus 1 by 2 minus n into n minus 1 by 2. Using this identity, if t of n is given to n, then find s of n. हो जाएगा? टेलीस्कोपिक से हो रहा है क्या? देखो जरा. Can it be done with the help of telescopic? No, I aren't going to waste the time, Ahan. You are supposed to write everything which is I am giving enough time. Simultaneously write also whenever I'm writing on the screen. See, it's pretty easy. Correct now? ये आप देखोगे, this n can be written like this. n ही है ना बेटा ये? It can be written like this. Up, if you observe carefully, this is the smaller term. How you replace n plus 1 with n? यहाँ पे n plus 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? n plus 1 minus 1 divided by 2. ये 1 से 1 कट जाएगा, क्या आ गया? n into n plus 1 by 2. देखो ये आ गया. ठीक है, तो बेसिकली s of n निकालना है तो एक लाइन में लिख सकते हो. कैसे लिखोगे? Keep the larger term as it is, that is n into n plus 1 by 2. Substitute 1 in the smaller term, that is 1 into 1 minus 1 divided by 2. So s of n कितना आ जाएगा? n into n plus 1 by 2. Understood? Sure. Now you need to prove this. 4n cube is equals to n into n plus 1 whole square. साइमल्टेनियसली लिखते रहना, मेरे को बाद में नहीं बोलना कोई. दादर n into n minus 1 whole square. You need to prove this, and after that you need to find the sigma varying from 1 to n cube.
आंसर तो सबको पता है, बट आई जस्ट वांट टू नो कि हाँ आप लोग टेलीस्कोपिक से कर पाते हो कि नहीं। पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया? कुछ नहीं है, सिंपल है ना, कॉमन लेके एक्सपांड कर देना आरएचएस को। आरएचएस को लो, एन को कॉमन ले लो और सिंपल एक्सपांड कर दो, आ जाएगा। अभी उसका यूज करके पूछा क्या है उसने, सम ऑफ फर्स्ट क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर है, यही है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। टेलीस्कोपिक से एक लाइन में होएगा। आ जाए तो बोलो कि हाँ सर आ गया। डन बोथ पार्ट। हाँ सेकंड भी करो फिर। फर्स्ट वाला तो इजी है, फर्स्ट वाला तो सिंपल है बेटा, उसमें कुछ नहीं करना है ना। फर्स्ट वाले में आप सिंपल क्या करो, आरएचएस को उठाओ, आरएचएस ले रहा हूं मैं, आई टेक एन कॉमन, एन कॉमन लूंगा तो स्क्वायर है ना, तो एन स्क्वायर कॉमन आएगा बेटा, एन स्क्वायर। अंदर क्या बच जाएगा, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, दैट इज एन प्लस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू ए माइनस बी, दैट इज n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 ना। 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ n से n कट जाएगा, ये क्या आएगा 2n, ये क्या आएगा 2, और बाहर क्या चल रहा है n स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4, n स्क्वायर इंटू ये कितना आ गया 4n क्यूब, तो ये दिया हुआ है। पहला वाला पार्ट तो बहुत इजी है। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। सबको आया तो बोल दो, नहीं आया तो मैं बताऊंगा ही, पहला पार्ट तो मैंने बता दिया है। आई एक्सपेक्ट कि सबको आना चाहिए। Yes, the second part is the sum of the n cube. मतलब t of n क्या गिवन है, n क्यूब गिवन है ना। I'm going to erase first part. t of n क्या गिवन है, n क्यूब, तो s of n क्या होगा। आई होप ये सबको पता है, s of n सिग्मा tn होता है, ये हम पहली क्लास में ही पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर में इंडीड। ठीक है, तो देखो अभी नहीं, इसको n क्यूब को क्या लिखोगे आप, लेट मी डू दिस। What do you write? You will write n cube as this, n into n plus 1 by 2 whole square divided by 4, इस 4 को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, ठीक है, माइनस n into n minus 1 the whole square divided by 4। सिंपल, कुछ नहीं किया, डिवाइड वो किया हुआ, 4 को इस साइड लेके आ रहा हूँ और कुछ नहीं किया। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अभी
ये हमारा टी ऑफ एन है, देखो ये ऑलरेडी टेलीस्कोपिक फॉर्म में है। इफ यू सब्स्टिट्यूट एन एन प्लस वन हियर, ये एन क्या बन जाएगा, ये एन प्लस वन बन जाएगा, ये एन प्लस वन क्या बन जाएगा, ये एन बन जाएगा। करेक्ट है। सो दिस इज द लार्जर टर्म, दिस इज द स्मॉलर टर्म। तो इसका एस ऑफ एन कैसे लिखते हैं, कीप द लार्जर टर्म एज इट इज, तो मैं इसको एज इट इज रख रहा हूं, एन इंटू एन प्लस वन द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, सब्स्टिट्यूट वन, यहाँ वन रखो, वन इंटू वन माइनस वन divided by 4, this becomes 0. So the answer is what, n into n plus 1 divided by 4. यदि आप 4 को अंदर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, है ना। आंसर will come what, n into n plus 1 divided by 2 whole square. ऐसा भी दे सकते हो, ऐसा भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। यस सर मेरे को सिर्फ एक डाउट है, मेरे को थोड़ा सिग्मा फंक्शन समझ नहीं आया। क्या सिग्मा फंक्शन समझ में नहीं आया, सिग्मा क्या एक सर आप, सिंबल है, पहला लेक्चर हाँ अटेंड किए सर, थे मेरा, सर किया था पर सर थोड़ा समझ नहीं आया इसलिए। क्या समझ में नहीं आया बताओ ना। सिग्मा सिंबल है, ए सर ए हाँ ए समझ में आता है, क्या, इंग्लिश का ए समझ में है, हाँ ये लेटर समझ में आता है ए, यस सर, ये बी समझ में आता है, यस हाँ ये सिग्मा एक ग्रीक लेटर है, ओके। उसका मतलब क्या है, सबको ऐड करना। ऐड करना वो समझ आया सर, पर तो ये फिर जो क्या हम समझ लोग में आया, ऊपर n और n इज इक्वल टू 1 लिखते हैं और साइड में n क्यूब लिखते हैं, वो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। इसका मतलब n की वैल्यू आपको 1 से बढ़ाती जानी है, 1 से इंक्रीज करती जानी है, ओके 1 सर, 2 3 4 5। समझ आ गया, थैंक यू सर। यस हेलो सर। बोलो बेटा। हाँ सर, in the n cube equals n plus 1, that summation part. Sir, you substituted n plus 1 second term n minus n 1. But sir, if you substitute n minus 1 into n plus 1, you will again get same. So like that Why will you both are substitute n greater. minus 1 when I'm telling you to substitute n plus 1? Why are you substituting n minus 1? Oh, sorry sir, sorry. Have I explained in my method anywhere that you need to substitute n with n minus 1? I've told you explicitly to substitute n with n plus 1. Yes, we are going to do so many terms. Don't worry, Anvi. Today whole lecture is going to be devoted for telescopic only. ठीक है, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो चलो अभी कौन सा वाला, क्यूब का हो गया और नॉर्मल हो गया। लेट्स डू दी स्क्वायर वन। ये वाला प्रूव करो जरा, प्रूव दिस। ठीक है, n इंटू n प्लस वन टू n प्लस वन माइनस n माइनस वन into n into 2n minus 1. You need to prove this, and using that you need to find sigma n square. करो, हो जाए तो बोलो, so that we can move on. Yes, आइडेंटिटी है बेटा ये। Proved, very good. What about rest? चलो, very good.
S of n चलो वेरी गुड। ठीक है, अभी जिनको आ गया, हाँ बाय 6 भी आता है, हाँ अपॉन 6 करेक्ट नहीं। तो देखो अभी, है ना, ये तो सिंपली प्रूव हो जाएगा ना गाइस, इसमें तो कुछ नहीं है, यू कैन टेक n कॉमन, फाइन, और फिर मल्टीप्लाई करके प्रूव कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, ये बच्चों वाला, आई होप ये कर लोगे। इसकी आइडेंटिटी को यूज करके आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट n इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 divided by 6 minus n minus 1 into n into 2n minus 1 divided by 6। n स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब you can clearly see this is what smaller term, how substitute n plus 1, if you substitute n plus 1, this is n plus 1, this place this n plus 1 करोगे 1 से 1 कट जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ना बेटा तो ये मिलेगा। तो क्लियरली आपको इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1, और इसको एज इट इज रखना है। इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 1 माइनस 1 क्या, ये पूरा 0 बन जाएगा। तो आंसर विल क्या आ जाएगा, हाँ n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट आज पे क्या एक्सपेक्टेड है कि आपको ये वैल्यूज बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इसका आंसर कितना आया, क्योंकि हम ये आगे के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, बाय 6, और इसका आंसर n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको कब कभी ऐसा भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, सिग्मा ऑफ n का होल स्क्वायर, ये थर्ड वाले को कई कई ऑप्शन में लिखा दिखेगा आपको। ठीक है, चलो नाउ लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस ऑन टेलीस्कोपिक। यस विरोक। यस सर। सर सिग्मा n क्यूब को सिग्मा n होल स्क्वायर क्यों लिखते हैं? आई डिडंट अंडरस्टैंड। क्यों, व्हाट इज सिग्मा n? समेशन ऑफ n टर्म्स s of n। आरएचएस क्या है, आरएचएस आरएचएस n into n plus 1 upon 2। हाँ तो यही तो लिखा हुआ है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वही तो है। ओह ओके, थैंक यू सर। चलो लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस ऑन टी ऑफ एन, दिस टेलीस्कोपिक। अभी तो बेटा मैं आपको टी ऑफ एन पका पका के दे रहा हूँ ना, बना बनाया सिंपल, ऐसा डिफरेंशिएट करने वाला है ना, आप एक एक लाइन में लिख लोगे। बट आगे वाली क्वेश्चन में मैं आपको टी ऑफ एन ब्रेक भी करवाऊंगा, और उससे आगे वाले क्वेश्चन में मैं टी ऑफ एन दूंगा ही नहीं, बोलूंगा खुद लिखो, सीरीज दे दूंगा सिर्फ, और पूरा सम निकाल के बताओ। करो जरा ये दो सम। क्या आंसर आता है बताओ। एस ऑफ एन फाइंड करना है, टेलीस्कोपिक कर रहे हैं ना, फाइंड एस ऑफ एन इन ईच केस। नहीं, पहला वाला तो करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है। नो स्नेहल,
स्नेल फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है. यस जयेंद्र, वेरी गुड, यू ऑब्जर्व्ड. फर्स्ट वन तो सबको आ गया, आई नो. सेकंड वाला रॉन्ग है हर्ष. हर्ष फर्स्ट करेक्ट है. यस प्रिजना, फर्स्ट करेक्ट है. यस, है ना, मैनी ऑफ यू ऑब्जर्व्ड. वेरी गुड. नो, फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड रॉन्ग है अंजलि. सेकंड में मेरे को बताओ, हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी ना. विच आर द 3 कंडीशंस फॉर टेलीस्कोपिक? पहला तो क्या, माइनस साइन होना चाहिए. दूसरा, दोनों साइड सेम फंक्शन होना चाहिए. और तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों की रैंक किससे डिफर करनी चाहिए? 1 से. वो कैसे चेक करते हैं? वो n को n+1 से रिप्लेस करते हैं ना, वो रैंक ही चेक करते हैं बेसिकली. तो कौन सी कंडीशन वायलेट हो रही है सेकंड वाले में? थर्ड वाली, है ना, क्योंकि दोनों की रैंक 1 से डिफर नहीं कर रही है ना. आप किसी भी टर्म में n की जगह n+1 डालोगे तो आपको कोई भी दूसरी टर्म नहीं मिल रही है ना. तो लेट अस लर्न फर्स्ट. फर्स्ट तो सबको आ गया, नहीं आया फिर भी देख लो. इसमें n की जगह n+1 डालोगे तो ये मिल जाएगा. सीधा सीधा एक लाइन में एस ऑफ एन आंसर क्या लिखोगे? 1/n+1 माइनस 1/1. तो पहले वाले में तो किसी को डाउट नहीं है. सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम है? आपने सपोज करो ये टर्म चूज करी, तो आप क्या रखोगे? n की जगह n+1. क्या ये n+1 है? नहीं. सो लेट अस चूज दिस वन. इसमें n की जगह n+1 डालोगे तो क्या मिलेगा? n+5. तो क्या ये n+5 है? नहीं. तो अभी क्या करना है? कोई टेंशन नहीं, है ना. जो भी मिसिंग टर्म्स हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो. ये लार्जर टर्म है ना, इसका स्मॉलर टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो. n+4 माइनस n+3. अब सब्ट्रैक्ट किया है तो ऐड भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि वैल्यू 0 रहनी चाहिए. तो ऐड भी कर दिया ना. तो लेट मी ये नीचे कर देता हूँ मैं, ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/n+3. ये प्लस में ध्यान रखना, है ना. माइनस 1/n+2. ये इसका स्मॉलर टर्म. फिर एक और टर्म ऐड कर दो, दैट इज 1/n+2 माइनस 1/n+1. ठीक है. फिर एक और ऐड कर दो, n+1 माइनस 1/n. हो गया. अभी देखो ध्यान से, ये वाला पेयर जो है ये टेलीस्कोपिक हो जाएगा, ये वाला पेयर टेलीस्कोपिक हो जाएगा, ये वाला पेयर टेलीस्कोपिक हो जाएगा, और ये वाला पेयर भी टेलीस्कोपिक हो जाएगा. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर ये आएगा. मैं लिख रहा हूँ, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना. यू कैन सिंपली राइट इट इन दिस फॉर्म, दैट इज एक्सेप्टेबल. क्या लिखोगे? एस ऑफ एन. पहले पेयर में लास्ट टर्म को एज इट इज रखो, दैट इज n+4. तो मैंने उसको एज इट इज रखा. दूसरे को मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 4 आ गया, है ना. 1+3. सेकेंड पेयर में मैंने लार्जर टर्म को एज इट इज रखा, दैट इज n+3. फिर स्मॉलर टर्म में 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1/3. राइट. देन 1/n+2 माइनस सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2. फिर 1/n+1 माइनस 1/1. दैट्स इट. ये आंसर है. समझ में आया? एनी डाउट इस वाले में? चलो, वेरी गुड. चलो लेट अस प्रैक्टिस मोर. अभी मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी तक मैंने बेटा आप सबको जितने भी क्वेश्चन दिए थे, है ना, मैंने क्या किया था? आपको ऐसा माइनस साइन और इन दोनों साइड ब्रोक करके दिया था. अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ. अभी मैं जो टर्म दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें पहले आपको माइनस में ब्रोक करके लाना पड़ेगा, है ना. मल्टीप्लिकेशन में दिया होगा, आपको माइनस में ब्रेक करना पड़ेगा. फिर उसके बाद आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा स्मॉलर टर्म है, कौन सा लार्जर टर्म है. फिर टेलीस्कोपिक लगाना पड़ेगा, है ना. क्वेश्चन लिख रहा हूँ अगेन. 6 क्वेश्चन है. लेट्स सी कितना कर पाते हो. टी ऑफ एन जो है
n plus 3 factorial minus factorial n, ये तो ऑलरेडी ब्रोक किया दिया हुआ है। log of n plus 3 divided by n थर्ड, ये भी ब्रेक करना पड़ेगा आपको, थर्ड वाला जो दे रहा हूं मैं, n इंटू n प्लस 3 फोर्थ t of n इज इक्वल्स टू n, ये इंटू है ना, इंटू फैक्टोरियल n, फिफ्थ वाला t of n इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 टू पावर n माइनस 3 टू पावर n, और सिक्स्थ वाला t of n इज इक्वल्स टू 1 बाय 2n माइनस 1 माइनस 1 बाय 2n प्लस 1। 6 के 6 आंसर एक साथ पोस्ट करना, तभी मैं चेक कर पाऊंगा। नहीं आ रहा है तो उसको ब्लैंक करके छोड़ देना, लिख देना हाँ मेरे को समझ में आना चाहिए, आपको नहीं आया। यस नमन। टेक योर ओन स्वीट टाइम, नो प्रॉब्लम। 6 क्वेश्चन है, 10 मिनट लगाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन इज 9 इंटू 3 टू पावर n माइनस 3 टू पावर n। छह के 6 क्वेश्चन नोट करो, आराम से टाइम लो, कोई टेंशन नहीं है, करो। कोई भी कंडीशन वायलेट यदि हो रही है तो क्या करना है, वो सेम टर्म ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देना है, वही तो सिखाया था अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वायलेट को कैसे ओवरकम करना है।
पहले वाले का आंसर क्या आया? चलो कर लो, नो प्रॉब्लम, आई गिव यू 10 मिनट। करेक्ट है। पीयूष, हर्षित, तन्मय, नमन। नमन रॉन्ग करा है आपने बेटा। एसओफएन तो करेक्ट निकालो। यस, खुशी करेक्ट है। अनुराग करेक्ट है। राहुल करेक्ट है। राहुल -1 आएगा। यस, प्रेजना करेक्ट है। 6th वाला भी करेक्ट है। हाँ, तन्मय चौधरी करेक्ट है। हाँ, हर्षित फ्रॉम कल्याण करेक्ट है। 2nd वाला। हाँ, तन्मय झा करेक्ट है। नहीं, नमन रॉन्ग है। आपके स्मॉलर टर्म सारे मिसिंग है, सिर्फ लार्जर टर्म को लिख रहा हूँ। अब टी ऑफ एन लिख रहे हो नमन, मैं आपको एस ऑफ एन पूछ रहा हूँ। हाँ, 6th वाला करेक्ट है। हर्षित कल्याण। 6 तो इजी है बेटी। करेक्ट है। राहुल देसाई फ्रॉम दादर। पीयूष करेक्ट है। नहीं, कुणाल अंधेरी रॉन्ग है। तन्मय चौधरी रॉन्ग है। 6th। हाँ, करेक्ट है तन्मय झा। 6th। 3rd, 4 और 5th नहीं आ रहा है। 5th भी आ जाना चाहिए। 5th तो बहुत इजी है, क्या है। नहीं, तन्मय चौधरी रॉन्ग है। आपने स्मॉलर और लार्जर टर्म गलत पहचानी है 6th में। हाँ, करेक्ट हर्षित। अभी देखो उसमें कौन सा मिशिंग है, कौन सा क्या है ना।
ब्रेक तो सही किया आपने। यस सही है भाभी, 6th वन। हाँ फर्स्ट वन ऐड कर दिया आपने, सेकंड वन लेट मी चेक, सेकंड वन नहीं किया आपने, थर्ड किया है, ठीक है। ठीक है फोर्थ वन, हाँ -1, ठीक है फोर्थ का करेक्ट है, फोर्थ। फिफ्थ वाला भी करेक्ट है, सिक्स्थ भी करेक्ट है। थर्ड वाले में स्नेहा फ्रॉम जयपुर, एक बार साइन चेक कर लो बस। मेरे ख्याल से आपने जो साइन दिए ना, 1 वाला प्लस में आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे, चेक करो जरा। चलो गाइस लेट मी सॉल्व इट ना। बहुत से बच्चों ने किया, देवांशी रावत आपका, हाँ आई थिंक ऑल आर करेक्ट। हाँ देवांशी रावत फ्रॉम बोरीवली, ऑल 5 आर करेक्ट, 6 आर करेक्ट इंडीड। करेक्ट है तन्मय झा। थर्ड वाला आपका सिर्फ, थर्ड वाला रॉन्ग है आपका, टेलीस्कोपिक बन रहा है क्या थर्ड में? हाँ अर्पिता फर्स्ट आपका करेक्ट है, फिफ्थ आपका करेक्ट है, सिक्स्थ करेक्ट है, ठीक है। दो नहीं आए तो लेट मी, चलो जो पहले नहीं आया मैं पहले वो बता देता हूँ, है ना, ताकि बाद वाले आप करते रहना। टाइम भी हो रहा है, तो आई होप आपने सबने नोट कर लिया। आई एम अरेंजिंग दिस। मैं पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ फोर्थ, सबसे इजी वाला है ना। क्या है, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन इंटू फैक्टोरियल एन। अभी इसको ब्रेक करते हैं, दैट इज राइटेड n प्लस 1 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन। अब माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस फैक्टोरियल एन। ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल एन। ठीक है, बन गया टेलीस्कोपिक। ये स्मॉलर टर्म है, ये लार्जर टर्म है, तो एस ऑफ एन एक लाइन में जाएगा, क्या आ जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट्स इट। So that is the fourth one. Fine. Let's discuss the third one. Third one में बहुत से बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। Third one में क्या है, t of n is given as 3 upon n into n plus 3। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 upon n minus 1 upon n plus 3। एलसीएम लोगे तो ये ऊपर वाला ही टर्म आ जाएगा, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर आएगा। बट अब ये टेलीस्कोपिक नहीं बन रहा है ना, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? इस पेयर से क्या आंसर आएगा, इस पेयर से आंसर आएगा 1 माइनस 1/2। ठीक है, इस पेयर से क्या आंसर आएगा, इस पेयर से आंसर आएगा 1, सॉरी 1/2 नहीं आएगा, मैंने उसकी जगह n प्लस 1 लिखी है, सॉरी इट इज n प्लस 1। यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 प्लस में चल रहा है माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। ये स्मॉलर टर्म है,
सो 1/3 माइनस 1/n। तो ये सारे टर्म नंबर वाले प्लस में आएंगे, एन वाले टर्म नेगेटिव में आएंगे। दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 6 तो ऑलमोस्ट सबसे हो गया था। 6 वाला तो बहुत इजी है, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, 6 वाला तो बहुत से बच्चे मिस्टेक भी कर रहे थे। बेटा आप जिनने मिस्टेक करी है उनने रॉन्ग टर्म पहचानी है। इसमें से स्मॉलर टर्म कौन सी है? ये वाली स्मॉलर टर्म है। इसमें 1 डालो तो क्या आएगा? 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस में वो इंटू 1/2n प्लस 1। मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट दिए, कुछ बच्चों ने 6th क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग आंसर किया था। तो ये 6 डिस्कस हो गया। अभी क्या बचा? लॉग वाला तो आई होप सबको हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत इजी है। 9 को क्या लिखोगे आप? 3 टू पावर 2 लिखोगे इंटू 3 टू पावर n माइनस 3 टू पावर n। क्या हो जाएगा? 3 टू पावर n प्लस 2 माइनस 3 टू पावर n। अगेन ये टेलीस्कोपिक नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, बना देंगे। इसको n प्लस 2 करो, इसको n प्लस 1 करो। एक पैर हो गया, सेकेंड पैर बनाओ 3n प्लस 1 माइनस 3 टू पावर n। बस दैट्स इट। वैल्यू पुट करो, कीप दिस एज इट इज 3n प्लस 2, इसमें 1 डालो तो क्या आएगा? 3 की पावर 2। कीप दिस एज इट इज 3 की पावर n प्लस 1, फिर 1 डालो। ठीक है, दैट इज द आंसर। log 1 इज प्रीटी इजी। log 1 में क्या गिवन है? पहले आप फॉर्मूला यूज करके उसका सब ब्रेक कर लो। n प्लस 3 माइनस log n। आई होप ये सबको आता है ना। दैट log a अपॉन b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। ये बेसिक इनइक्वालिटी है जो हमने फाउंडेशन बिल्डर क्लास 9th में करी थी। ठीक है, हाँ, तो ये सब रोक करके लिख दिया मैंने उसको। बस अब ये अगेन यहाँ n प्लस 3 है, यहाँ n है, कोई बात नहीं है, बना देंगे फोर्सफुली। यहाँ n प्लस 3 करो, यहाँ n प्लस 2 कर दो, फिर यहाँ log n प्लस 2 कर दो, यहाँ n प्लस 1 कर दो। ठीक है, फिर यहाँ log n प्लस 1 कर दो और ये log n आ गया। दैट्स इट। ये एक पैर बना, ये एक पैर बना, ये एक पैर बना, इसमें वैल्यू डालो। दिस वुड बी n प्लस 3 माइनस log 3। ठीक है, फिर प्लस log ऑफ n प्लस 2 माइनस log 2 प्लस log ऑफ n प्लस 1 माइनस log 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, जिनको log आता है दे कैन डू इट ना। इफ यू आर गिविंग द आंसर इन दिस फॉर्म आई एम ओके विद दैट, नो प्रॉब्लम। समझ में आया? एनी डाउट इन दीस 6 क्वेश्चन? फोर्थ वाले में क्या समझ में नहीं आया आपको? फैक्टोरियल आता है? ये समझ में आता है कि फैक्टोरियल 5 को आई कैन राइट एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली n प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? एक कम करके लिख दो, दैट इज n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। तो अभी मैंने उसको ब्रेक किया, n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल n। मल्टीप्लाई करो इस फैक्टोरियल n का इस ब्रैकेट के अंदर, क्या आएगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n। इसको क्या लिखोगे? n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। बन गया टेलीस्कोपिक। इसको एज इट इज रखो, इसमें 1 डाल दो। हो गया? चलो, अभी मैंने आपको 2 सिखाए। पहले तो मैंने आपको टी ऑफ एन पका पकाया दिया बेटा, है ना, तो आपने सिंपल एस ऑफ एन लिख दिया। इसमें मैंने आपसे थोड़ी मजदूरी करवाई, क्या कि टी ऑफ एन ब्रेक करवाया। अभी तो मैं आपको टी ऑफ एन भी नहीं दूंगा, है ना।
Find the sum of this series. Into में वो डॉट नहीं है ना? 1/1 into 2 into 3, 1/2 into 3 into 4 plus 1/3 into 4 into 5 plus dash 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 dash. ठीक है, ये सीरीज है, ना एपी है ना जीपी है ना एचपी है. निकालो सम. करना टेलीस्कोपिक से ही है. पहले टी ऑफ एन लिखो, फिर टी ऑफ एन को ब्रेक करो, लार्जर टर्म स्मॉलर टर्म पहचानो, वैल्यू डालो, एंजॉय करो. कोई टी ऑफ एन बताएगा मेरे को इसका क्या आने वाला है? एनीवन? ना लिख दो क्या आया. यू कैन राइट ना. करेक्ट जयेंद्र. बस अब इसको ब्रेक कर लो बेटा. तो आपने ब्रेक कर लिया तो वो टेलीस्कोपिक हो गया. वेरी गुड कुणाल. यस खुशी. यस तन्मय. करेक्ट. मैं सब इसको ब्रेक कर लो. ठीक है गाइस, तो अभी मैं टाइम नहीं लूंगा आपका. विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम हियर ओनली. ठीक है, यू हैव द सेकंड लेक्चर फ्रॉम 7:30, सो आई डोंट वांट टू कंज्यूम योर 15 मिनट, है ना. सो we'll discuss in the next lecture. Thank you, है ना. I'm going to end the lecture. Thanks for your active participation.